Hello everyone. Today we are going to start our new chapter name is A Letter to God written by G.L. Fuentes. This is a story which tells us the enforces our faith in humanity. After reading the story, we know that there still are people who help others without any self interest. Now I am telling you the chapter sketch of this story. This story is about hard life and extreme faith in God of a poor farmer whose name is Lencho, who had lost his crop due to heavy rain and hailstones. It was the only source of income to fulfill his family's desires. He firmly believed that God would help him in such a difficult situation and would not let him and his family die of hunger. He wrote a letter to God to seek help. Some kind employees of the post office helped him. So, this story tells us to have faith in God and never lose hope in adverse situations. So students, this story is about hard life and extreme faith in God. कि यह जो स्टोरी है ये बताती है हार्ड लाइफ के बारे में और बहुत ज़्यादा विश्वास रखना किसमें, गॉड में. एक पुअर फार्मर हुज नेम इज़ लेंचो हु हैड लॉस्ट हिज क्रॉप, जो कि अपनी क्रॉप को, उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है ड्यू टू हैवी रेन एंड हिलस्टोन्स मीन्स ओलों के द्वारा. इट वॉज दी ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यह केवल उसका ओनली यही उसका एक इनकम सोर्स है, उसकी क्रॉप्स, जिससे कि वो फुलफिल कर सके अपनी फैमिली की डिज़ायर्स. ही फर्मली बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन सच अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है कि गॉड उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसकी हेल्प करेगा एंड वुड नॉट लेट हिम, और उसे वो छोड़ेगा नहीं एंड हिज फैमिली को भूखा नहीं मरने देगा. ही रोट अ लेटर टू गॉड, वो लिखता है एक लेटर गॉड को उसकी हेल्प करने के लिए. सम काइंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प्ड हिम. सो द स्टोरी टेल्स अस टू हैव फेथ इन गॉड. इसलिए जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि हमें विश्वास रखना चाहिए गॉड में एंड नेवर लॉस होप, और कभी भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एडवर्स मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में. नाउ आई एम टेलिंग यू द करेक्टर्स which are used in this story. So first is Lencho. Lencho is a poor farmer who lived on the peak of a low hill with his family. He was a firm believer of God. He was innocent, hopeful, caring and responsible. Lencho, who is a poor farmer, जो कि पुअर फार्मर है, who lived on the peak, वो एक ऊंचाई पर रहता है एक लो हिल की, with his family. He was a firm believer है गॉड का. He was innocent, hopeful, caring and responsible. Now next is postmaster. Postmaster is a fat, amiable means friendly fellow who helped Lencho to retain his faith in God. He gave a part of his salary in the charity for Lencho on behalf of God. पोस्टमास्टर इज़ अ फैट, वो एक फ्रेंडली फेलो है जो कि हेल्प करता है लेंचो की, ताकि जो उसका विश्वास है गॉड से वो ना हटे. ही गेव, वो देता है अपनी सैलरी का कुछ पार्ट चैरिटी के रूप में लेंचो को, ताकि जो उसका विश्वास है वो भगवान से हटे नहीं. नेक्स्ट करेक्टर्स आर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पीपल हु हेल्प लेंचो ऑन पोस्टमास्टर्स कॉल, वो उसकी हेल्प करते हैं पोस्टमास्टर के कहने पर. दे लाफ्ड एट लेंचो व्हेन दे सा द लेटर, वो हंसते हैं लेंचो पर जब वो देखते हैं जो उसने लेटर लिखा है गॉड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से. लेंचो कॉल्ड देम
अ बंच ऑफ क्रूक्स, और लेंचो है वो उन्हें कहता है एक बंच ऑफ क्रूक। बंच मीन्स अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड क्रूक्स मीन्स dishonest people or criminals. So students, now I am telling you the summary of this chapter. Now the summary of the chapter is like this. First, Lencho's hope of good harvest. Lencho was a poor farmer who lived on the crest. Crest means peak of a low hill with his family. His was the only house in the entire valley. His field was full of ripe corn and easily visible from the house. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family. Means Lencho's hope of good harvest. इन द फर्स्ट वो होप जो लेंचो है वो होप रखता है अपनी अच्छी फसल के लिए। सो लेंचो वॉज अ फार्मर, एक फार्मर है हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स पीक पॉइंट पे वो रहता है एक लो हिल की अपनी फैमिली के साथ। हिज वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, केवल उसी का ही घर है जो पूरी वैली में है। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से पकी हुई है। एंड ईजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और उसके घर से आसानी से देखी जा सकती है। ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, और वो ईगरली मीन्स उत्सुकता से वेट करता है वो एक गुड रेन की, टू हैव अ गुड हार्वेस्ट के लिए, एक अच्छी फसल के लिए। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वो इससे अर्न कर सके अपनी फैमिली के लिए मनी। नेक्स्ट इज टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर। एज लेंचो होप्ड it started raining at the time of supper. Supper means dinner, which gave Lencho a ray of hope. He was extremely delighted to see that. He compared the raindrops with silver coins, which shows his joy. But soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstones, which ruined the crops. The field had been covered with snow like a layer of white salt. Lencho was worried for his family. Now, Lencho's hope is turning into despair. Firstly, Lencho's hope of good harvest, and second, his hope is turning into despair. Why? Because as Lencho hope, जैसे कि जो लेंचो है वो होप करता है, इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्ट हो जाती है रेनिंग एट द सेम टाइम ऑफ सपर मीन्स डिनर के टाइम में, विच गेव लेंचो अ रे ऑफ होप, जिससे उसको एक आशा की किरण मिलती है। वाई? क्योंकि वो चाहता है कि एक अच्छी फसल होने के लिए अच्छी बारिश होना का ज़रूरी है, इसलिए वो वेट करता है एक अच्छी बारिश का, और ऐसे ही होता है। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वो इसे देख के बहुत खुश होता है। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स, और वो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स की विद सिल्वर कॉइन से, विच शोज हिज जॉय, जो कि उसकी जॉय को शो करते हैं। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डेस्पेयर, अचानक से जो उसकी खुशी है वो निराशा में बदल जाती है। वाई? बिकॉज द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स, क्योंकि जो रेन है वो चेंज हो जाती है हेलस्टोन्स में, विच र्यून द क्रॉप्स, इसकी वजह से उसकी जो फसल है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद स्नो, जो फील्ड है जो खेत हैं वो कवर हो जाते हैं स्नो से, लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट की तरह। लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, वरी है अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ हिज इनकम। नाउ नेक्स्ट, लेंचोज फर्म बिलीफ इन गॉड। दो लेंचो वॉज अ फार्मर, पुअर फार्मर, एंड he had lost all his crops, he had firm
faith in God. He found in God his last hope and decided to write a letter to God for help. He asked God to send him 100 pesos so that he could sow his field again and support his family until the new crops were harvested. He also wrote that if God didn't help him, his family would die of hunger. Though Lencho was a poor farmer and had lost all his crops, यद्यपि वो पुअर फार्मर है, उसने अपनी पूरी फसल को खो दिया है, बट उसका अभी भी जो विश्वास है वो किस में है? गॉड में, कि गॉड उसके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसकी हेल्प ज़रूर करेगा. ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप. वो पाता है कि जो गॉड है वो उसकी लास्ट होप है. एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. और वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखना. किसका? किसे? गॉड को, फॉर हेल्प. ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज. और वो कहता है गॉड से कि वो उसके लिए 100 पैसे भेज दें, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपनी जो फसलें हैं उनको दोबारा बो सकें. एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें. अनटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब तक कि जो उसकी नई क्रॉप्स हैं वो पक नहीं जाती हैं. ही ऑल्सो रोट दैट, वो ये भी लिखता है, इफ़ गॉड डिडंट हेल्प हिम, यदि गॉड उसकी हेल्प नहीं करेगा, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, तो उसकी फैमिली मर जाएगी हंगर की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट इज द पोस्टमास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर. अब जो उसने लेटर लिखा है लेंचो ने गॉड को, अब वो गॉड के जो लेटर है वो उसे बॉक्स में डाल जाता है. अब जो पोस्टमास्टर का रिएक्शन है टुवर्ड्स द लेंचोज लेटर वो क्या है? After reading Lencho's letter to God, the postmaster laughed but soon realized that Lencho had firm faith in God and his belief should not be shaken. So he decided to help Lencho with the help of his post office employees. He collected 70 pesos and handed the envelope to Lencho himself, in which he also contributed a part of his salary. जो आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड के प्रति जो लेटर लिखता है उसको पढ़ने के बाद में पहले तो पोस्टमास्टर जो लाफ करता है, बट सून रियलाइज दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड. बट वो जल्दी ही रियलाइज करता है जो उसका गॉड के प्रति विश्वास है उसे, एंड हिज बिलीव शुड नॉट बी शेकन, और वो नहीं चाहता कि उसका जो विश्वास है वो भगवान के प्रति जो विश्वास है वो हटे. सो ही डिसाइडेड, इसलिए वो सहायता करता है, सोचता है कि उसकी सहायता करे विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की हेल्प से. ही कलेक्टेड 70 पेसोज एंड हैंडेड द एनवलप टू लेंचो हिमसेल्फ. वो उसे हैंड ओवर करता है, इन विच ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जिसमें वो भी अपनी जो सैलरी है उसका जो पार्ट है जो चैरिटी में देता है वो भी उसमें डालता है. Now, next point is Lencho addresses the post office employees a bunch of crooks. Lencho became angry when he saw 70 pesos in the envelope. वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है जब वो देखता है कि केवल उस एनवलप में 70 पेसोज हैं, जबकि वो डिमांड करता है 100 पेसोज की. बट वो सोचता है कि यदि भगवान मुझे देगा तो वो कंप्लीट देगा, कंप्लीट जो मेरी डिमांड है मीन्स 100 पैसेज हैं वो कंप्लीट ही देगा, वो आधे नहीं देगा या कुछ परसेंट नहीं देगा. ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सच अ मिस्टेक, और वो नहीं विश्वास करता कि जो गॉड है वो इस तरीके की कोई मिस्टेक करेगा. एंड सेंड हिम लेस मनी, और उसे मनी कम देगा. सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जो बची हुई मनी है वो वापस गॉड से मंगवाएगा. इसलिए ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर. इन दिस लेटर ही रिक्वेस्टेड टू गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि वो गॉड को लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि जो बची हुई जो मनी है मीन्स रेस्ट ऑफ द मनी वो अब मनी ऑर्डर के द्वारा ना भेजे. बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वो सोचता है कि जो मनी है जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है. बंच मीन्स एक ग्रुप है ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स मीन्स होता है क्रिमिनल जो पीपल्स हैं उनका. हु माइट हैव स्टोलन, जिन्होंने उसकी मनी को रख लिया है. इस तरीके जो से जो लेटर जो
लेंचो है उसका जो होप है गॉड के प्रति वो इस स्टोरी में हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है किसके प्रति, गॉड के प्रति। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी केयरफुली। वॉच द वीडियो and understand this story. So thank you so much.